Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. Today we talk about Northeast India. Not many Indians even know much about this region of the country. Geographically, it is part of our land. But ask most Indians, they will not know what are the languages spoken here, how many states comprise of the Northeast, what are the capital cities, what is the music of Northeast India. Other than the Shillong Choir, not much is known. But slowly with connectivity, that is changing. The new breed of political leaders of Northeast India must also be credited for this. Today I spoke with Sarbanda Sonowal, a BJP politician from Assam. He is currently the Cabinet Minister of Ports, Shipping and Waterways and is also the Cabinet Minister of Ayush. Ayush is an acronym for Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy. These are the 6 Indian systems of medicine prevalent and practiced in the country. Sonowal had earlier served as Chief Minister of Assam. Between him and the current Chief Minister Himanta Sarma, the two are instrumental in spreading BJP's reach in Northeast. Joining me in the podcast is my colleague Amit Kumar. Thank you very much for coming to our studio, Mr. Sonowal. We really look forward to having a chat with you. You have been entrusted with 2 portfolios, very important ones. And one is shipping and waterways, and the other one is Ayush. For our listeners who probably don't know much about Ayush because it's a new mantralay, thoda sa aap isko elaborate karenge as to what it is that is the responsibility. It's a kind of traditional system of medicine that is Ayush, Ayurveda, Siddha, Unani, Swaharikpa, Yoga, Naturopathy and Homeopathy. These are all the family members of Ayush. Okay. So now, as you know, this has been there for thousands of years in India. This is our traditional power. This is traditional wisdom, traditional science. Now, as you know, it was earlier, though it was particularly used or it was in action, but that was in the piecemeal aspect. It was not that way institutionalized or given priority in the national scheme or national agenda. But up to 2014, if you look at the figure, then you will discover the truth. Up to 2014, it was simply a department. But after Honorable Prime Minister Narendra Modi has taken over the responsibility of the nation, so तब से आयुष को लोग देखने लगे, आयुष का शक्ति को देखने लगे, आयुष को सही करीब से आयुष की जो भी यूटिलिटी, इसके बारे में लोगों को खास जानकारी मिली और लोगों को अलग अलग बीमारों से जब राहत मिली और लोगों ने इन चीज़ों को पहले इतना गंभीर रूप से लिया नहीं था. किसी का अगर कोई रोग हो गया तो वो चले जाते हैं किसी वैद्य के पास. It was confined with a certain area, certain location, certain group of people. Of course, there are so many yoga gurus who had been always promoting. There are so many practitioners, healers throughout the country. They have been always there in this particular traditional system of medicine. But it was not that way. Taking on the top of the priority agenda in the national has given importance. So Honorable Prime Minister has given special emphasis, special importance. As a result, since 2014 till now, you have seen the growth. You have seen the visibility of Ayush. You have seen how this particular traditional system of medicine of India origin have won the heart of the people of the world, particularly in the sector of prevention of disease and preservation of human health. So these are very, very important, I believe, the greatest achievement. And because of this, Honorable Prime Minister untiring efforts has a special emphasis, we got the recognition from the level of WHO, World Health Organizations. They have come all the way from Geneva and they have set up their extension office in India. And as you know, across the world, there are more than 170 countries who practice traditional system of medicine.
but among all of them, it is India who has now taken the center stage and ultimately got an opportunity to take the leadership to positioning this particular traditional system of medicine and also integrating and also developing the regulation. So this responsibility is now bestowed on the shoulders of the India. So you talked about regulation. Traditionally, many Indian families have been taking कोई ना कोई जड़ी बूटी लेते ही हैं. Traditional medicine as a supplement maybe or something that they would always do. But there's also this fear that people have कि इसमें regulation नहीं है तो कुछ भी डब्बे में डाल के बोल दिया कि ऐसा नहीं है. हाँ. अभी पहले इसके स्टडी रिसर्च होते हैं, रिसर्च के द्वारा फाइंडिंग्स उभर के आती है. तो फाइंडिंग्स का बाद साइंटिफिक एविडेंस बन ही जाता है. ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही किसी ने बता दिया. हाँ. क्योंकि इन पर रिसर्च होती है और आपने देखा है हिंदुस्तान की तरफ से भी अलग अलग देश का साथ कोलैबोरेटिव रिसर्च, अलग अलग यूनिवर्सिटी के साथ ये रिसर्च होने के वजह से अब एविडेंस जो साइंटिफिक एविडेंस जो लोगों का मांग है, लोग देखना मांगता है कि इन दवाई का साइंटिफिक एविडेंस क्या है, साइंटिफिक वैल्यू क्या है. तो इस सिलसिले में हमारी तरफ से जो भी काम किया गया है, इस काम के जरिए आज दुनिया के मानव समाज ने उसको विश्वास में ली है. इसके लिए हमारी जो प्रोडक्ट ने क्रेडिबिलिटी हासिल की है, एक्सेप्टेबिलिटी हासिल की है. इसकी वजह से आज इंडियन आयुष इंडस्ट्री का मार्केट दुनिया में $18.2 बिलियन तक पहुंच गया. 2014 तक only it was like 3. It was $3 billion. But since 2014 to 2022, it went up to the level of $18.2 billion. तो इससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तो कितना ग्रोथ हुई है. और हमारे बजट के सिलसिले में भी बजट को भी 7 गुना बढ़ा दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने. और पहले 2014 में आयुष को बढ़ावा देने के लिए, मान्यता देने के लिए उन्होंने पहले इंडिपेंडेंट मंत्रालय से शुरू की, आयुष इंडिपेंडेंट मंत्रालय. तो उसके बाद अब हमें कैबिनेट मंत्रालय की एक इसको मर्यादा दी गई है, स्थान दिए गए हैं. तो इससे साफ जाहिर है कि भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी ट्रेडिशनल जो परंपरागत पद्धति का जो चिकित्सा पद्धति है, इनको दुनिया में कैसे अधिक लोकप्रियता मिले, अधिक उनके एक्सेप्टेबिलिटी बने. तो इस सिलसिले में भारत सरकार की तरफ से वो ध्यान स्पेशली दिया गई है. सर, जामनगर में एक ग्लोबल हेल्थ सेंटर बनने वाला है ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए. तो क्या वो आयुष के अंडर आता है और उसमें क्या क्या होगा? क्योंकि जो WHO ने आपने देखा है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और जामनगर में माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में, प्रधानमंत्री के द्वारा और साथ में मॉरिशस के प्रधानमंत्री और WHO की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस की उपस्थिति में ये हमारी पहली बार के लिए WHO के एक्सटेंशन ऑफिस जामनगर में स्थापना हुई. उसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी आप लोगों ने देखा है. तो इससे WHO ने हमें वो उन्होंने दायित्व दी है कि अब भारत को ही ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन के सिलसिले पे नेतृत्व देना होगा और दुनिया की जितना भी देश में ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन का प्रैक्टिस होते हैं, इनको इंटीग्रेट करना होगा. इंटीग्रेट करना होगा, यानी कि मूल भूमिका अब हमारी देश को ही लेना होगा. तो ये बहुत बड़ा सफलता है. तो there'll be smaller offices in other places. Of course, there'll be office तो बन गया अभी. नहीं, बाकी मुल्कों में हमारे कंट्री से हाँ, हमारे यहाँ से कोऑर्डिनेट होगा. ये आप देखिए, यूएनओ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हेल्थ विंग है WHO. ये WHO का ही दफ्तर है. WHO का जो मूल लक्ष्य है, जो फर्ज है दुनिया को इंटीग्रेट करने का, वही काम इससे इस दफ्तर से किया जाएगा. यानी कि हमें सबसे बड़ी इस विषय पर मौका मिली है. तो मुझे लगता है कि ये हमारे आयुर्वेदा हो, सिद्धा हो, यूनानी हो, सोहारिकपा हो, योगा हो, नेचुरोपैथी हो या होम्योपैथी में इस विषय पर जुड़े हुए चाहे विद्यार्थी हो, चाहे रिसर्च स्कॉलर हो, चाहे फैकल्टी हो, सबके लिए
और हमारी ट्रेडिशनल जो भी प्रैक्टिशनर्स है, हीलर्स है, सबके लिए ये बहुत बड़ी एक मौका है. तो इसमें एजुकेशन, सब रिसर्च, एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एवरीथिंग विल बी डन. एंड विल देयर बी सम काइंड ऑफ अ स्टैंडर्डाइजेशन? Of क्योंकि course. अगर आयुर्वेद डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन देता है कि फला चीज लेनी है, तो उसमें इफ यू टेक दैट प्रिस्क्रिप्शन एंड गो टू, सपोज द प्रिस्क्रिप्शन इज गिवन इन चेन्नई, आप जाके गुवाहाटी में भी वही दवाई खरीद सकते हैं इफ इट इज एन एनीथिंग एल्स. बट इफ इट इज अ यूनानी और एन आयुर्वेद, फिर कैसे होता है? दिस काइंड ऑफ अ स्टैंडर्डाइजेशन है कुछ? निश्चित रूप से स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए हमारा फार्माकोविजिलेंस जो ये किया गया है, तो इसके जरिए द्वारा ही सारे मेडिसिन का स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है, ताकि कोई ऐसा गड़बड़ी ना हो. हर चीज़ों पर एक स्टैंडर्डाइजेशन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब जाके लोगों का मन में आप विश्वास जीत सकते हैं. लोगों का भी इस विषय पर लोगों का विशेष रूप से विश्वास पैदा होगा. इसलिए इन चीज़ों को साइंटिफिकली आगे बढ़ाने का काम करेगा इस दफ्तर से. सभी साइंटिफिकली रिसर्च भी होगा, स्टडी भी होगा, और उसका जो फाइंडिंग्स वो भी उभर के आएगा. और इन पर ग्लोबली जो भी जर्नल हमारे इस सिलसिले में जो भी जर्नल अपने पब्लिश होते हैं, इस जर्नल के जरिए दुनिया को जानकारी मिलेगा कौन से लाइक ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन से कौन से बीमार में कैसे राहत मिलता है, कैसे उसको उपयोग किया जाता है. मुझे लगता है कि डिटेल में अब तक इन चीज़ों पर इंस्टीट्यूशनलाइज रूप से इसको आगे बढ़ाने का काम किसने नहीं किया है. पहली बार के लिए हमें ये मौका मिला है दुनिया को जोड़ने का, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन से दुनिया को जोड़ने का एक मौका मिला है. दुनिया के मानव समाज को सेवा करने का एक मौका मिला है, वो भी भारत को मिला है. आई बिलीव आज़ादी का अमृत कालखंड में मुझे लगता है दिस इज द टॉलेस्ट अचीवमेंट ऑफ द इंडियंस. सर, एक सवाल मेरा है कि इससे संबंधित हम लोग एम्स की बात करते हैं तो लोग एम्स का मतलब जो पूरे देश में एम्स का जो हेल्थ है उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेकिन अभी हम देखा कि दिल्ली में जो एम्स आयुर्वेदा है, तो इस तरह के जो एम्स आयुर्वेदा दिल्ली के बाहर या इस तरह की जो लोगों को उस आयुर्वेद से जोड़ने के लिए ट्रीटमेंट की जो फैसिलिटी है वो कहाँ कहाँ आप खड़ा कर रहे हैं? ऐसा है, देखिए आप लोगों को मालूम है कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे 2 मंत्रालय को उन्होंने निर्देश जारी की है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एक साथ काम करे, क्योंकि दोनों मंत्रालय का लक्ष्य एक ही है, उद्देश्य एक ही है, प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज. अगर लक्ष्य एक ही है तो क्यों ना हम एक साथ काम करें इंटीग्रेटिव. तो उसी हिसाब से अब दोनों मंत्रालय की तरफ से हर महीना हम बैठक में मिलते हैं और सेक्रेटरी लेवल पर भी, ऑफिशियल लेवल पर भी इन विषय को आगे बढ़ाने का हम लोगों ने काम शुरू किया है, जिसकी वजह से अब लक्ष्य इसी हिसाब से तय किया गया है कि एम्स से लेकर स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, CSC हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, सब सेंटर हो, यानी कि ग्रामीण सेक्टर तक दोनों सिस्टम सही उपलब्ध किया जाएगा, चाहे ट्रेडिशनल हो या चाहे मॉडर्न हो. Modern and traditional will be integrated and will work together. Synergy without any prejudice. Without any ego problem. Sir, we'll all be developing a holistic working relationship to serve the mankind. That's all. सर, आई एम गोइंग टू मूव टू योर सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब आयुष के बारे में बात हो गई, शिपिंग के बारे में बताती हूँ. तो उसमें देयर वाज अ रिपोर्ट दैट यू चेयर्ड अ चिंतन बैठक रिसेंटली टू टेक अ स्टॉक टेकिंग अबाउट प्रमोटिंग ग्रीन शिपिंग एंड रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट फ्रॉम पोर्ट ऑपरेशंस, एंड यू टेकन अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स कि एक ग्रीन इको सिस्टम होना चाहिए, एक ग्रीन इको एक इन द मैरिटाइम सेक्टर reduce the carbon footprint as much as possible. तो ये जो sustainable practices हैं, इनके बारे में कुछ बताएंगे हमको? हमारे जो पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इस मंत्रालय के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से हमें 2 जो विजनरी पर्टिकुलरली स्कीम हमें मिली है. एक तो मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और दूसरी है सागरमाला. तो सागरमाला के जरिए ये तय की गई है कि हमारी जितना भी पोर्ट है कोस्टल इलाका में,
It is right from Gujarat to Bengal. It is 7,500 kilometer length. That's The coastal. entire peninsula. And then, and, yeah. So we have the presence of 12 major ports, which is under our ministry. तो उनमें यही लक्ष्य रखा गया है कि हम कैसे कनेक्टिविटी को बढ़वा दें और हमारे पोर्ट को कैसे मॉडर्नाइज करें और पोर्टलेस इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे बढ़वा दें, पोर्ट कनेक्टिविटी कैसे एनहांसमेंट हो और साथ साथ में अपनी कोस्टल कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसे किया जाए और साथ साथ में हमारे कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवेज दोनों को हम कैसे बढ़वा दें। यानी कि ये 5 बिंदु पर, 5 पिलर पर अब हमारे मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से उन्हीं की दिए हुए निर्देश के मुताबिक हमारे मंत्रालय निष्ठापूर्वक लगे हुए हैं और पिछले दिनों में, पिछले 7 साल के अंदर जो काम हुए है, मैकेनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, डिजिटाइजेशन, इसकी वजह से आज हमारी पोर्ट का कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ चुका है। आपने देखा है पिछले बार भी हम लोगों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य हमें दी थी कि 2021-22 तो इस फिनेंशियल ईयर में ही हमें $400 बिलियन वैल्यू तक हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए। एक्सपोर्ट इतना बड़े लक्ष्य हमें दिए गए थे। तो वी आर द मेजर ट्रांसपोर्टर बीइंग ए शिपिंग मिनिस्ट्री इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। एक्जिम कार्गो हम 96% हैंडल करते हैं। तो जो लक्ष्य दिए गए थे उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग, वाटरवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ कस्टम, जितना भी हमारी सारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जुड़े हुए जो मंत्रालय है, चाहे इंफ्रा हो, चाहे लाइन मिनिस्ट्री हो, सब लोगों ने मिलकर काम किया और इस लक्ष्य को हम 2 महीना पहले ही पूरा किया। यानी कि $413 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट, इतना तक हम लोगों ने उसको बढ़ाने में हम सफलता प्राप्त की है। तो इससे ये साफ जाहिर है कि हमारी पोर्ट की जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी और हमारे टर्न अराउंड टाइम, यानी कि कोई कंटेनर वेसल पहले 44 आवर्स तक उनको इंतजार करना पड़ता था लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए, अब हमारी इंडियन पोर्ट में 26 आवर्स में हमने उसको करने में सफलता प्राप्त की है। ये जो आधुनिकीकरण हो रहा है, ये मैकेनाइजेशन हो रहा है, मैकेनाइजेशन की वजह से पोल्यूशन नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि मैकेनाइजेशन जब होंगे तो पोल्यूशन नहीं होंगे, डिजिटाइजेशन होंगे तो पोल्यूशन नहीं होंगे, और सोलर पावर्ड की वजह से अब अधिकतर पोर्ट ग्रीन पोर्ट बनने जा रहा है। तो अभी भी हम लोगों ने जो भी, जैसे वेस्टर्न डॉक हमारी जो बात वहाँ शुरू हुई है पारादीप में, और अभी भी हमारे कैबिनेट में आज हमें अनुमोदन मिली है, तो टोना टकरा में गुजरात में कंडला पोर्ट में भी जो भी हमारा मल्टीपर्पज़ जो कार्गो टर्मिनल और साथ में लाइक कंटेनर टर्मिनल जो बनेगा, दोनों ही ग्रीन बनेगा। तो इससे साफ जाहिर है कि हमारा जो लक्ष्य परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने दी है, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारी हर कदम में इस विषय को ध्यान में रखते हुए हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। So ये COVID के time there was a lot of talk that supply chains have got hit because of whether it is China or whatever, और ये भी बात चली है कि shipping containers की कमी हो गई है। So in fact it is estimated, it seems that India will need about 50,000 containers in the next 3 years. So do we have the capacity to make those containers, या हमको import पे dependent होना पड़ेगा? Are we, because it comes under your मंत्रालय, so are we, that is needed, right? देखिए, एक साथ हम सिर्फ हमारे मंत्रालय नहीं, रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, उनके कॉन्कर जो है ऑर्गेनाइजेशन, उनकी तरफ से भी इस विषय पर कदम उठाए गए हैं, और मिनिस्ट्री लाइक कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री लाइक रेलवे और मिनिस्ट्री पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, हम लोग सब एक साथ मिलकर इस विषय पर लगे हुए हैं। और आपको ये बात जानकर खुशी होंगे कि गुजरात में भावनगर में अभी कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू हो गया है। तो इसलिए अगले दिनों में इस चुनौती को हम सामना करने के लिए और सही जवाब देने के लिए हमारी तरफ से जो होमवर्क
होना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में ये हो रहा है और अगले दिनों में निश्चित रूप से हमारा यही लक्ष्य होगा कि दुनिया की कंपटीशन के बाजार में हमारी शक्ति दुनिया देखे। इनलेट वाटरवेज के थ्रू आप लोगों ने मार्केटिंग की बात की थी, काफ़ी दूर तक बिजनेस को बढ़ाने की बात की थी, उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है? हाँ, इनलैंड वाटरवेज में आपको ये भी जान के खुशी होंगी कि 2014 तक हमारा सिर्फ 16 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम हमारा कार्गो हैंडलिंग हुआ करते थे, तो अब वो बढ़ के 109 मिलियन मेट्रिक टन तक पहुंच चुका है। तो इससे साफ जाहिर है कि पिछले 8 साल के अंदर जो प्रगति हासिल की गई है, इसकी वजह से चाहे 8 गंगा हो, चाहे महाबाहु ब्रह्मपुत्र हो, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब देश के अंदर 111 नेशनल वाटरवेज बने गए हैं। तो इनमें से जो भी फिजिबिलिटी पाया गया है 25, इनका काम ज़बरदस्त चल रहा है। कार्गो वेसल का मूवमेंट, हमारे जेटी बनाने का, 8 गंगा की क्रॉस जेटी, सो सारी चीज़ों को ब्रह्मपुत्र हो या गंगा हो, और हमारे गंगा से थ्रू बांग्लादेश प्रोटोकॉल रोड असम तक सामान भेजने का काम मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ है पहली बार के लिए। बहुत साल तक ये रास्ता बंद पड़े हुए थे, लेकिन माननीय मोदी जी ने जब बांग्लादेश गवर्नमेंट का साथ समझौता किया 2015 में, तब से ये प्रोटोकॉल रोड खुला गया है, और उनकी दिए हुए शक्ति के द्वारा, सहयोग के द्वारा आज हमारे मंत्रालय की तरफ से बिहार पटना से हम लोगों ने पहली बार के लिए एक कार्गो वेसल 180 मेट्रिक टन का फूड ग्रेन्स हमने गुवाहाटी पांडु तक भेजा, और कुल इसका लंबाई है 2350 किलोमीटर, और दूसरी हल्दिया पोर्ट से 1600 किलोमीटर थ्रू बांग्लादेश जाकर पांडु तक 1800 मेट्रिक टन स्टील, टाटा स्टील हम लोगों ने वहाँ ले जाने का काम किया है। तो ऐसे मतलब उसका गतिविधियाँ अब बढ़ने लगा है। तो हमारा तो लक्ष्य है, तो अगले दिनों में इसका 200 मिलियन मेट्रिक टन तक हमारी जो भी कार्गो मतलब ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग के सिलसिले में हम सफलता प्राप्त करेंगे। सर, आप पूर्वी भारत की बात कर रहे हैं, तो मैं ऑब्वियसली आई विल कम टू नॉर्थ ईस्ट। यू आर वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स दैट आवर कंट्री हैज़ नोन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एंड यू आर ऑक्यूपाइंग अ वेरी सिग्निफिकेंट जॉब प्रोफाइल इन द बीजेपी गवर्नमेंट। तो अब आप हमें बताइए कि आप स्टूडेंट लीडर से एजीपी टू बीजेपी कैसे हुआ ये आपका रोड मैप ऑफ योर लाइफ? मैं डिटेल बताऊं तो कई घंटा मुझे लगेंगे। लगा लीजिए कई घंटे। आपका नेक्स्ट फ्लाइट हम पोस्टपोन करवा देते हैं। ऐसा है कि जब से हमने विद्यार्थी संगठन के नेतृत्व संभाले 1992 में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने उस नेतृत्व दी थी। तो 1992 में मुझे मौका मिला इस संगठन को नेतृत्व देने का। तब से मैं आंसू से जुड़े हुए। तो आंसू जब मैं अलग अलग कामों के लिए हमें दिल्ली आना पड़ता था। नहीं, पर आंसू में आपने why was it so important? Because those of our listeners who don't know about it, especially those who don't live in India, or even Indian students को इतना पता नहीं है about why Bangladeshi infiltration was such a big issue and such an emotive issue in Assam, especially youth के लिए इतना they were really scared कि Bangladeshi infiltration से demography change होगा। थोड़ा सा आप उस time period के बारे में हमें बताएं। ऐसा है कि like when this particular matter was come to the notice of the people of Assam, that it was very dangerous situation because our numbers have been like put to the corners, and their number was increasing day by day because of the openness of the border, international border. There was no restriction. So because Congress was in power and they have intentionally allowed them to come and settle and create their vote bank. So this is what they have the design against the nation. So that is why we protested it. And that is why ASU have taken the leadership and demanded the government of India to immediately stop it, and also to seal the border, seal the borders, and also
like whoever illegally staying in the state of Assam, they should be identified immediately so that they could be like detected, deleted from the voters and deported. So these are the 3D involved in this particular thing. So why is it that Assam mein it was so important for Assam, but you didn't see the same kind of maybe infiltration or same kind of student movement in the other states bordering Bangladesh? इतना strong student movement नहीं था जितना Assam में था. Why is that? Because like we had the tremendous problem out of their presence. No? Because we have feelings that will be put to the microscopic minority because of their growing population day by day. Because there are no restriction. And the government was the main this thing supporting hand for those like illegal migrant. So that is why it was protested, and we have compelled ultimately the government of India. That time it was Rajiv Gandhi as Prime Minister. So that time they have been. No, it was Indira Gandhi. Indira Gandhi. 1985. Which is the accord was signed. With But Rajiv before Gandhi. that, 85 was Rajiv 85 Gandhi. Rajiv Gandhi, 1983 bill was passed in parliament, that is Now, that 1983. was a IMDT. IMDT That bill. was वो अलग है. illegal determination by tribunal जो है. हाँ. तो illegal migrant determination by tribunal Yeah. जो है IMDT. तो It was very important for you. You played yeah, a very pivotal role. So actually, the movement started from 79 till 85. It was a 6 years movement. It's a 6 years famous movement. You all know. Ultimately, in 85, this has come to a settlement agreement, which is known as Assam Accord, the famous Assam Accord. And this, according to this agreement, the government of India has promised that whoever is illegally residing in the state of Assam, they will be detected, their name will be deleted from the voters list, and they will be deported. This was the principal promises. But later on, the government of India, particularly Congress government, didn't pay any attention. Even though And the thing was signed by Rajiv Gandhi, even then they didn't bother. They didn't bother. And they also promised that the IMDT Act will be removed. At the time of signing the accord, the Congress government at Delhi, they promised to the ASU leaders that IMDT will be removed. Okay? So, but that has not been implemented also. So that is why I had to come to the apex court of the country, challenging the constitutional validity of the IMDT Act. That legal battle went for 6 years, 2000 till 2005. And ultimately, Honorable Apex Court, on the day of 12th July 2005, they have struck down the act as an illegal, unconstitutional. Why did you move to the BJP? At what stage did you feel that regional party se national party mein aana hai? It has happened in 2011. And up to 2011, I was in SGP. And when I have lost the election in 2009, Lok Sabha election from Dibrugarh Lok Sabha constituency, later on I was approached by BJP leaders, and I had a relationship with the then leaders, particularly when I was the president of ASU. During that time, Congress was in power and BJP were in opposition. And to raise our issue in the House of the Parliament, we went to the BJP leaders. I requested them, please take it up. They have been kind enough. All the BJP leaders, right from Atal Bihari Vajpayee ji, Advani ji, all the Jetli jis, they have always been very much sympathetic to all Assam Students' Union, and they have accepted our proposal, and they have. But in spite of that, sir, हमेशा at least till mid 2000s, हमेशा कहा जाता था कि कांग्रेस का गढ़ है नॉर्थ ईस्ट. बीजेपी कभी इनरोड नहीं कर पाएगी. There was no way, and BJP wasn't even attempting to till recently, in fact. But up to it's completely it has been it's BJP all the way. तो वो इतनी जल्दी कैसे बदल गया? Usually it takes a lot of time for change to occur in Northeast India. हकीकत तो यही है कि कांग्रेस ने बहुत बड़ा धोखा दिया नॉर्थ ईस्ट.
नॉर्थ ईस्ट की लोगों ने बहुत विश्वास किया था कांग्रेस को, इसलिए बार बार उन लोगों को सत्ता में बैठाया था। सिंस लाइक 1952 जितना भी इलेक्शन हुए, अधिकतर इलेक्शन में नॉर्थ ईस्ट से हमेशा कांग्रेस को ही जीत हासिल होती थी, है ना। तो बार लाइक अलग अलग परिस्थिति में उन्होंने जैसे ही नॉर्थ ईस्ट को धोखा दिया, नॉर्थ ईस्ट की विकास की बदले उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को भ्रष्टाचार दुर्नीति से काफ़ी नुकसान पहुंचाया, और साथ साथ में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स के जरिए उन्होंने कमजोर करके रखा। नॉर्थ ईस्ट को कभी भी एक साथ जोड़ने के लिए उन्होंने मौका नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया। हम 8 स्टेट है, 8 स्टेट को अगर उन्होंने एक साथ मिलाया होता, शामिल किया होता, अलग अलग कार्यक्रम के जरिए, अलग अलग स्कीम के जरिए सद्भावना मजबूत होते, तो एक साथ हम मेहनत करते और हमारे जो मतलब फर्टाइल जो एरिया है, उस फर्टिलिटी के जरिए हम अपने उत्पादन की शक्ति बढ़ा सकते थे, हमारे विकास होते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी नेशनल एजेंडा में हमारे विकास के लिए कभी भी ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से लोग जाग उठा, और जब परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिले 2014 में, तो मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट पहले भी दौरा किया है, जब मोदी जी पॉलिटिक्स में थे नहीं, तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को बड़ी गंभीर रूप से अध्ययन किया और आविष्कार भी किया। नॉर्थ ईस्ट में जो प्रकृतियों का संपदा, संभावना, शक्ति भरा हुआ है। तो इसलिए प्रधानमंत्री बनते ही नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने कहा कि ये देश का अष्टलक्ष्मी है, अगर नॉर्थ ईस्ट का विकास होगा तो देश का विकास होगा। सर, आप कह रहे हैं कि हाँ कि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह इज द वन हु ब्रॉट द लुक ईस्ट पॉलिसी, बट यू थिंक हुआ नहीं? ये सिर्फ लुक ईस्ट देखने के लिए रह गया वहां कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं हुई। अच्छा, मोदी जी आके ही एक्टिव पॉलिसी यानी कि करना सही है। नॉर्थ ईस्ट को देखने से नहीं होगा, कुछ कदम उठाना पड़ेगा, मेहनत करना होगा विकास के लिए, लोगों को जोड़ना होगा। लोगों का पास जो शक्ति है, संस्कृति हो, शिक्षा हो, या हमारे अलग अलग कृषि भूमि हो, हमारे जो बायोडाइवर्सिटी का शक्ति है, इन चीज़ों को मोदी जी ने सही आविष्कार किया। और इस शक्ति के द्वारा हम कैसे नॉर्थ ईस्ट की समाज को मजबूत बनाएं, अलग अलग कार्यक्रम के जरिए, कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, मेडिकल, साइंस, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, कल्चर, सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने का मोदी जी ने काम किया। और उन्होंने खुद अब तक आई बिलीव मोर देन 56 टाइम ही हैज विजिटेड। तो साथ साथ में सारे केंद्रीय मंत्री को पहली बार के लिए कोई केंद्रीय सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, हर केंद्रीय मंत्री को ये आदेश जारी किया गया है कि नॉर्थ ईस्ट हर 15 दिन के अंदर उनको दौरा करना ही होगा। अपने विभाग, अपने मंत्रालय के द्वारा जो भी कार्यक्रम कर सकते हैं उसको करना ही होगा, सही समय पे उसको लागू करना होगा, निष्ठापूर्वक इस काम में अपने आप को शामिल करना होगा। मतलब जो डेडिकेशन, जो डिवोशन, जो कमिटमेंट, जो हार्डवर्क मोदी जी ने पिछले 8 साल के अंदर की, इसकी वजह से आज नॉर्थ ईस्ट का आप आतंकवादी को समस्या देखिए, वो भी नहीं रहा। वो सर थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि अभी रिसेंटली एक बॉर्डर डिस्प्यूट भी कई राज्यों के बीच में था, वो भी सॉर्ट आउट हुआ है, किन-किन राज्यों के बीच हुआ है, इसके बारे में बता सकते हैं? मोदी जी की नेतृत्व में आज हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी इस विषय पर जो निष्ठापूर्वक लगे हुए हैं और हर प्रदेश सरकार को साथ में लिया है और विषय को बहुत गंभीर रूप से अध्ययन किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल डायलॉग दिखाने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए, नतीजा निकालने के लिए निरंतर पिछले 8 साल की मेहनत की वजह से मोदी जी के नेतृत्व में आज नॉर्थ ईस्ट में हर प्रदेश में शांति ही शांति है।
और जिस तो ये तंगबडियों ने इंसर्जेंसीज को कैसे किया, क्योंकि नहीं, अभी वो जो सरेंडर हुआ है, बिकॉज यू सी सर, जब हम लोग इंटरनेशनली जब बात करते हैं तो पाकिस्तान हमेशा एक लिस्ट देता है कि ये इंडिया में इतने सारे ग्रुप्स हैं जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, और उसमें इतने सारे नॉर्थ ईस्ट के लिख लेते हैं कि वो दीज आर द सेपरेटिस्ट ग्रुप्स इन नॉर्थ ईस्ट, बट द होम मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली सेंड, एंड नॉर्थ ईस्ट के मिनिस्टर्स भी कह रहे हैं दैट, एंड वी सॉ ऑल्सो रिसेंटली कि जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है दे डिड द सरेंडर. सो कैन यू टेल मी हाउ इज इट दैट द क्लेम इज बीइंग मेड दैट इंसर्जेंसीज आर कंप्लीटली डाइंग इन नॉर्थ ईस्ट? ऐसा है कि ये जो इंसर्जेंट जो है वो तो नॉर्थ ईस्ट का ही है ना. अच्छा, दे आर नॉट फॉरेन फंडेड, दैट्स व्हाट वो तो नॉर्थ ईस्टर्न है. हाँ. असम से बोरो जो भी है, कार्बी जो भी है, उल्फा जो भी है, सब असम की है. नॉर्थ ईस्ट के एनएससीएन जो है वो भी नागालैंड की नागालैंड, है. हाँ. यानी कि उन लोगों ने भी सारे विषय को अध्ययन किया है. पहले जो नेग्लेक्ट किया गया था, हमारी जो भी आवाज को कभी भी दिल्ली की तरफ से ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कोई नेता तैयार नहीं था, प्रस्तुत नहीं थे. लेकिन मोदी जी ने हर विषय को बड़े ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और हर आवाज को उन्होंने आवाज का जवाब दिया. इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्टर्नर की मन में लगने लगे कि हकीकत में देश के प्रधानमंत्री हमारे पक्ष में है, हमारी हितों के लिए है, हमारी शुभचिंतक है, हमें प्रमोट करने के लिए सुबह शाम लगे हुए हैं. तो दे हैव डिस्कवर्ड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, द ट्रू patriot of the nation and true lover of North Easterner. What are the aspirations of people from Assam, since you represent Assam, and from the other 7 states? आपका एक state है plus 7 states. What are the main things that they wanted? Is it the same as, say, a youth in Agra or a youth in Coimbatore or a youth in Ahmedabad? क्या वही aspiration है कि कुछ और ही है? नहीं, देखिए, सबको इज्जत से जीने का मौका मिलना चाहिए. देश लोकतंत्र है. देश का अलग अलग प्रांतों में बसे हुए जनता को इज्जत से जीने का मौका मिलना चाहिए. अपने स्वाभिमान को वो हमेशा सुरक्षित रखना चाहते हैं. ये सबके ही ये नेचुरल लाइक स्पॉन्टेनियस एक फीलिंग होती है. इस फीलिंग को अगर कोई इज्जत दे, कोई सम्मान दे, तो स्वाभाविक रूप से लाइक पीपल फील एट ईज. Yes. So ease of doing business, as we have the policy, ease of living in the nation. So that like environment has been created by Honorable Prime Minister visionary leadership, his honest leadership, dedicated leadership, and he could able to connect the people of Northeast. That is the biggest aspect of his, I think, success story. सर, मेरा इसी से सवाल है कि आप लोग कह रहे हैं कि बहुत कुछ प्रधानमंत्री ने किया. पहले नॉर्थ ईस्ट को देखा जाता था, किया नहीं जाता था. ऐसा आप लोगों ने क्या नया किया है जो लोगों को लगे, देश को पता चले कि आपने नया किया है? देखिए, एक बात है कनेक्टिविटी. हमारे कनेक्टिविटी थे नहीं, सड़क थे नहीं, पुल थे नहीं. तो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए आपको 3 दिन तक मेहनत करना पड़ता था. तो 3 दिन आप एक प्रांत से दूसरे प्रांत, एक ही स्टेट पे जाने में थकान पकड़ लेती है. ये स्वाभाविक है. पीपल फील टायर्ड. उनकी जो प्रोडक्शन है, सपोजिंग कोई विद्यार्थी एक अपने घर से अगर स्कूल जाने के लिए उनको कोई सड़क नहीं मिलती, कोई किसान उनकी फसल को बिकने के लिए बाजार जाने के लिए कोई सड़क नहीं मिलता, और आज की समय पर विद्यार्थियों को स्टडी करने के लिए कोई रोशनी नहीं मिलती, और साथ साथ में जीवन का भय, जीने का भय, क्योंकि चारों तरफ आतंकवादी बसा हुआ था. कौन जाने किसको कब उठा के ले जाएगा, बम ब्लास्ट होगा, किडनैपिंग होगा, एक्सटॉर्शन होगा. Extortion was a big thing, yes. ये बड़े एक भयंकर माहौल बने हुए थे. तो मोदी जी ने सारी विषय को अध्ययन किया, और हमारे देश के हर बीजेपी के जितने भी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हो या केंद्रीय सरकार का मंत्री हो
या भारत सरकार का अधिकारी हो, सब लोगों को उन्होंने कहा, देखिए देश का ये अभिन्न अंग है, आप उनको भी ध्यान में लीजिए, उनको भी सेवा कीजिए, उनको भी आगे बढ़ाने का काम कीजिए। इसलिए सब लोगों ने अपनाया नॉर्थ ईस्ट को। अब नॉर्थ ईस्ट बच्चों को, चाहे केरल में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे आपको बेंगलोर में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे चंडीगढ़ में हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे बनारस में हो, सब में दे फील वेरी मच कंफर्टेबल, बिकॉज नाउ देश के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबके मन में ऐसा एक भावना शक्ति जाग उठा है कि भाई हम एक देश का ही नागरिक है। टीम इंडिया की बात बार बार मोदी जी बोलते थे ना, टीम इंडिया, दैट्स द स्पिरिट ऑफ लिविंग टुगेदर, दैट्स द स्पिरिट ऑफ मूविंग टुगेदर, that's the spirit of walking together. The sense of togetherness he could able to create within the mindset of the people of the entire country, and particularly Northeasterner. मैं तो नॉर्थ ईस्ट का हूँ ना, मैं तो देखा, मैं तो विद्यार्थी संगठन की नेता होने के नाते लोगों की दिल की आवाज़, दिल का दर्द, इन चीज़ों को ही मैं प्रतिनिधित्व करता था। दिल्ली आने के लिए मुझे इसलिए आना पड़ता था कि दिल्ली में आके हम किसी अधिकारी को, मंत्री को अपने दुख भरा कहानी को सुनाऊं। यहाँ पुल नहीं है, यहाँ सड़क नहीं है, यहाँ स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, यहाँ कोई सब सेंटर नहीं है, बिजली नहीं है, मतलब किसानों के लिए बाजार भी नहीं है, प्लेग्राउंड भी नहीं है, और बड़े बड़े कलाकार को मौका, अपनी कला प्रदर्शन करने के लिए मौका भी नहीं दिया गया। एक शिलोंग क्वायर के अलावा हमको नॉर्थ ईस्ट के म्यूजिक के बारे में रेस्ट ऑफ इंडिया हार्डली न्यू एनीथिंग अबाउट the music and the culture of Northeast. Not much was known. It's only now that, people are opening up. Social media also plays a role, I think, with that. Acha, let me now get to your personal life also. I read somewhere that you were a great football player. You follow cricket a lot. I believe sports is very close to your heart. Yeah. Sports is very close to my heart. And when I was gymnasium secretary in Kanoi College, Upper Assam, one of the reputed colleges in the Upper Assam. So that is in the Dibrugarh district. It is almost 77 years old college. So when I was student there, I got elected in the student union as gymnasium secretary. You know the gymnasium secretary, that is to powerlifting, weightlifting, bodybuilding. So I was a strongman of my college, Kanoi College. What is strongman? Strongman, powerlifting, deadlift, and squats. There are three categories. You are to like lift the weight, pull the weight up. So in the three system, you have to live. आपका अगर सबसे ज़्यादा आपने वजन उठाने में सफलता प्राप्त की है, so you will become the strongman. Because so you were the strongman. I was the strongman. Okay. And I read somewhere that you didn't even have a football at some point of time. Yeah, I was a football player also. And then I was cricketer also. I used to play cricket in university. What was that fruit? कोई fruit के साथ आपने खेला क्योंकि आपके पास क्या था वो? ये है ना, ये हमारा वहाँ fruits मिलता है. उसको टेंगा बोलते हैं. ये जब kind of सार टेस्ट का है. तो ये फुटबॉल का आकार जैसा होता है. इसका आकार फुटबॉल जैसा ही होता है. तो अगर फुटबॉल खरीदने में आपका दिक्कत है तो उसी से आप सलाह लेते हैं काम. So you used to do that, उससे प्रैक्टिस करते थे. आपने लॉर्ड्स के मैदान पे भी क्रिकेट खेला है. हम लोग गए थे वहाँ पार्लियामेंट्री टीम में, इंडियन पार्लियामेंट्री टीम की प्रतिनिधि होके गए थे, तो 3 मैच खेले लंदन में. So you do get a little bit of time to do sports या नहीं मिलता अभी? अभी तो समय का कठिन हो गया है, लेकिन when I was MP 14 Lok Sabha 2004 to 2009, that time I used to give lot of time to the sports at Delhi, and even I went to play to Mumbai and many places, Gurgaon and this thing, Surat, Gujarat, and many area places I used to play because I have a passion for this. That's the reason why
it prompted me all the time to come to the ground. I and believe play. physical fitness is a big thing now. yeah. Among the entire cabinet, everybody wants to be very physically fit and and promote sports in all the states. So we are hoping to see some cricketers and some football players, more football players. There are several from the Northeast, but we're hoping to see more. Tell me the other thing which I'm interested to know is I believe you're a foodie also. You love food and you experiment with food. Northeast के food cuisine के बारे में, do you plan to make some food festivals so that more awareness is there? हाँ, ऐसा होना चाहिए. आपने सही कहा. लेकिन हमें इफ़ यू आस्क मी अबाउट माय चॉइस, मेरे पसंद के बारे में, तो आई ऑलवेज प्रिफर बॉइल्ड फूड. ऑयली सब्सटेंस कम हो तो ठीक है. हाँ, तो क्योंकि मुझे मालूम है कि ऑयल अगर ज़्यादा डालेंगे तो शरीर को नुकसान पहुंचाएगा. ये तो आप आयुष की वजह से बात कह कर रहे हैं. Yes, yes. This awareness must have come with आयुष. No, बचपन से मेरा माता पिताओं ने ये लीफी वेजिटेबल को बॉयल करके, तो उसमें ये मतलब कोई स्टमक अपसेट होने का कोई संभावना नहीं होती. अगर आप ज़्यादा तेल डालेंगे अंदर, अल्टीमेटली इट विल गो एंड क्रिएट सम प्रॉब्लम. कहीं ना कहीं शरीर में उसका असर पड़ ही जाएगा. वैसे भी असमीज फूड में इट्स नॉट लाइक तली हुई चीजें ज्यादा नहीं होती. ज़्यादा नहीं होते. अधिकतर बॉयल लेते हैं. नॉर्थ ईस्ट में ऐसा, हम लोग को पहाड़ी इलाका में भी, सारी स्टेट में भी अधिकतर लोग बॉयल पसंद करते हैं. तो बॉयल में कोई खर्चा नहीं है ज़्यादा, जल्दी हो जाता है. एक निजी सवाल ये है कि आप आसाम से दिल्ली आए, फिर दिल्ली से आप आसाम गए, फिर आप दिल्ली आए. आसाम ठीक है या दिल्ली ठीक है? देश ठीक है. देश बड़ा है. Oh, nice. देश प्रिय है. That's such a nice thing to say. That's such a nice thing. The home is anywhere अरे in India. देखिए, जो मौका मुझे भगवान ने दी है और परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक मंत्री के रूप में मुझे देश सेवा करने के लिए जो मौका दी है, और लोगों का जो आशीर्वाद सहयोग है, तो ये तो हमारे लिए सुनहरा मौका है. सो आई मस्ट सर्व माई नेशन, माई पीपल फ्रॉम एनीवेयर, एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, नो प्रॉब्लम, अंडर एट एनी कैपेसिटी. सो इट इज सिंपली to serve Thank your you nation. so much for coming to our studio and answering our questions. And we're most grateful, and hopefully Northeast connectivity will not be something that, always when I speak to people from the Northeast, they say बहुत potential है. तो वो potential Can I realize ask a होना simple चाहिए. question to you? One more question. Yeah, of course. Please go ahead. नॉर्थ ईस्ट से पहली बार है कि बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में आपको लाया गया है, बीजेपी के सीईसी में आपको लाया गया है. क्या नॉर्थ ईस्ट के पॉलिटिशियन को पहली बार मौका देते? क्या आपको बड़े फिगर में, क्या दिल्ली में लाने का कुछ वजह, खास वजह नॉर्थ ईस्ट को बेनिफिट के लिहाज से देखें? देखिए, एक बात तो मैं कह सकता हूं कि जो मुझे मौका दी गई है, इसके लिए मैं विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, और साथ साथ में हमारे बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देता हूं, वरिष्ठ नेता अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं, और BL संतोष जी को, और जिन लोगों ने मुझे ये मौका दी है कि पार्टी में इस पोजीशन में रहते हुए हम पार्टी के जरिए देश को कैसे निष्ठापूर्वक सेवा करें. तो ये सही है कि पहली बार के लिए एक नॉर्थ ईस्टर्नर को पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह दी गई है. तो ये बहुत बड़ा स्वीकृति है नॉर्थ ईस्ट के लिए, बहुत बड़ा इज्जत है नॉर्थ ईस्ट की स्वाभिमान को. मैंने कहा कि मोदी जी हमेशा हर निर्णय में देश को जोड़ने का काम करते हैं. कन्याकुमारी से लद्दाख कारगिल तक, और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, हर निर्णय पे सबको साथ लेते हैं. मेरा ही मानना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, देश को जोड़ने का काम मोदी जी ने किया है. तो क्या इसका फायदा 2024 में बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट में दिखेगा? हमको तो मेहनत करना ही होगा. आपने देखा है, मैं जब बीजेपी में ज्वाइन किया था 2011 में, तो वोट शेयर सिंगल डिजिट में था, 8% बीजेपी का. तो जब मोदी जी के नेतृत्व में जब 2014 में कैंपेन शुरू हुई सारा देश में, तो पहली बार के लिए असम में आउट ऑफ 14 7 सीट हम जीते.
7 लोकसभा सीट, और साथ साथ में 69 असेंबली सेगमेंट में हमारा स्थान पहला रहे, 69, और 30 में सेकंड रहे, यानी कि 99 आउट ऑफ 126। और 126, 99 विधानसभा क्षेत्र में हमारा पोजीशन मजबूत बने 2014 में। तो आई बिलीव दिस इज हाउ द पीपल ऑफ द एंटायर रीजन हैव एक्सेप्टेड मोदी जी एज ए लीडर, एज ए ट्रू well user of entire Northeast and a true leader of our country. थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you for speaking with us. Thank you. Thank you for listening or watching this ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have listened to it or watched it. Namaste. Jai Hind.